Namaskar. I hope you all can see the screen as well as you can hear me. If any issue is there, please please let me know through chat box. Please chat here. If you all can hear me, please say yes. Please type yes if you can hear me and see the screen. Yes, yes, fine. Thank you. All of you, welcome to YTC. YTC full form is your trading coach. I'm Shubrotom. Good evening to dear all. It's my pleasure to introduce myself to you. I am YTC Shubroto Poddar, a 42 years old individual, a teacher turned mentor living in Delhi NCR. A hearty welcome to all of you to this webinar, which will cover 3 top secrets of intraday trading in Indian equity market. Right? And I assume, just a minute. And I assume that some of the August audience that have attended this webinar are veteran traders, some are trader come mentors, some are purely trainers, and others are freshers, so to speak, aspiring traders. Well, I don't have any problem in sharing my views with anybody or the knowledge that the markets have taught me during my association with this field for the last 16 and a half years. Well, I have told something about myself, and there is no time to let me give chance to everybody to give his or her introduction. That's why please excuse me. Straight away, we are going to discuss the topics, the 3 top secrets that you have seen in my advertisement. I am going to disclose or share with you in this webinar today. The first top secret that I am going to share with you is, number 1, 3 scenarios in the stock market. 3 scenarios in the stock market. Well, the session is going to be continued in Hindi only. Starting portion जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश में हमने कर दिया, बट इसके बाद जो भी वेबिनार का जो भी कंटेंट है, टोटल कंटेंट जो है वो हिंदी में ही कैरी फॉरवर्ड होगा. चलिए हिंदी में बात करते हैं. I am not basically my mother tongue is not Hindi. Still, my Hindi is adjustable. I think you will be understanding when I am speaking in Hindi. I am an Indian first, a human being first, then an Indian, and then I am a Bengali. Okay, I belong to Kolkata and residing for the last 10 years in Delhi NCR. I told you. Now let's come to the point. The first topic that we are going to cover today in this webinar, that is 3 scenarios in the stock market. If you want to make benefit of your trading career, then you have to understand these 3 scenarios. How many scenarios are there? Basically, you have to understand that, and you have to be able to understand, recognize all the scenarios by seeing the chart patterns. If you are able to do that, then you can also get benefit of those scenarios, of those situations. Let us straight away go to the topic. I'm sharing with you the screen where we have all the contents. See, I hope you are seeing this page, a PDF file I have opened here, and here you can see on the background of black and
gray colored background, you are seeing something written. Can you see? If you can see, please say yes. अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो हाँ बोलिए प्लीज, चैट पे यस बोलिए. यस. चलिए हिंदी में ही बोलते हैं. आप लोग सभी देख पा रहे हैं? जो लोग देख नहीं पा रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो उनके एरिया की नेटवर्क इश्यूज जरूर होगी, क्योंकि इधर से अगर इशू होती तो कोई भी सुन नहीं पाते, कोई भी देख नहीं पाते. ये इधर से इशू नहीं है. चलिए हम चलते हैं. इनिशियली मैं आप लोगों के साथ ये कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा. मेरा मानना है कि एक सफल ट्रेडर होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है. एक सफल ट्रेडर होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है. नंबर 1, आपके पास राइट ट्रेडिंग स्टाइल और राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. नंबर 2, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है. नंबर 3, कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर साइकोलॉजी. आपके मन के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए. ये 3 चीजें अगर आप मेंटेन करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोके. हाँ, मैं ऐसे ही बोलता हूं. दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोके. अगर आप इन चीजों को लाइटली नहीं लेते हो, रिलीजियसली इन तीनों रूल को, इसके अंदर बहुत सारे और रूल्स आएंगे, बट इन तीनों मेन जो पिलर्स कह सकते हो, आपकी ट्रेडिंग करियर की जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स को आप रिलीजियसली अगर फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोके. कंसिस्टेंटली ट्रेडर की परिभाषा मेरे पास क्या है वो मैं क्लियर कर दूं. लगभग महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं. 22 दिन में से 16 से 18 दिन, 16 to 18 डेज कोई अगर प्रॉफिट में मींस ग्रीन में निकल सकता है अपनी ट्रेड पोजीशन से, और मैक्सिमम 4 to 6 डेज, 4 से 6 दिन उनका लॉस होता है, तो उस ट्रेडर को ऐसे रेगुलर बेसिस पे मंथ आफ्टर मंथ वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, उस ट्रेडर को मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मानता हूं. सबके लिए परिभाषा अलग हो सकती है, मेरे लिए इतना है. महीने में 16 दिन आप प्रॉफिट में निकले, या तो मैक्सिमम 18 दिन, 22 दिन भी निकल पाते हैं, अच्छी बात है, बट कम से कम 16 दिन. 16 डेज, 22 ट्रेडिंग डे में से 16 दिन अगर आप प्रॉफिट में निकले, ग्रीन में निकले, चाहे प्रॉफिट भले ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, और मैक्सिमम 6 दिन आपका लॉस अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप करते हो तो लॉस आपका मिनिमम टू मीडियम लॉस होगा, बिग लॉस तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो मैं आपको जरूर एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मानूंगा. ऐसा अगर 1-2 साल लगातार आप कर लिए तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर मानने में, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर मानने में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है. ठीक है, और अगर 1-2 साल इस चीज की आदत अपने डाल ली, कहते हैं ना इंसान आदत से मजबूर है, तो अच्छी आदतें आप डालेंगे तो ऑब्वियसली आपसे जाने अनजाने में भी अच्छा काम होगा, सही काम होगा, आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं. मतलब गलत ट्रेड आप नहीं लोगे, गलत ट्रेड में नहीं फंसोगे. बाय चांस मार्केट की वोलेटिलिटी के कंडीशन के चलते वही, इसीलिए तो 6 दिन छोड़ दिया हमने. ओके, चलिए इसके बाद सीधे आते हैं टॉप सीक्रेट नंबर 1 पे. यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे मार्केट में बेसिकली प्रिंसिपली या तो मेनली कहिए, मेनली मार्केट में 3 ही सिनेरियो बनते हुए हमें अक्सर दिखाई देते हैं. 3 सिनेरियो. इसको थोड़ा जूम करके मैं बड़ा करके दिखाऊं. ध्यान दीजिए, ये जो है जूम का जो है ये पेड वर्जन नहीं है, तो इसीलिए 40 मिनट्स के बाद ये लिंक टूट जाएगा.
लिंक टूटने से पहले मैं आपको बता भी दूंगा, एंड द न्यू आईडी पासवर्ड मैं आपको उसी ग्रुप में दोबारा से दे दूंगा, ठीक है। आप तुरंत रिज्वाइन हो जाना, बाकी पार्ट नेक्स्ट ज्वाइनिंग सेशन में हम करेंगे, ओके। न्यू आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, न्यू आईडी पासवर्ड से आपको रिकनेक्ट होना है, रिज्वाइन होना है। अभी नहीं, जब होगा मैं 1 मिनट पहले बता दूंगा, ठीक है जी। 3 पॉसिबल सिनेरियोज इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। बेसिकली मैं आज कंसंट्रेट कर रहा हूं इस वेबिनार में इक्विटी मार्केट के बारे में, और वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोगों से बातें शेयर करने बैठा हूं। कभी भी कोई बातों को अनदेखा करके, अनसुनी करके फिर ये नहीं कहना सर फॉरेक्स में ये नहीं काम करता है, सर कमोडिटी मार्केट में ये नहीं काम करता है। मैंने क्लियरली आपको डिस्क्लेमर दे दिया, और एक डिस्क्लेमर में मैं बात कहना चाहता हूं। एज अ डिस्क्लेमर आई मस्ट टेल यू दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड और सेबी सर्टिफाइड ट्रेनर। मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे मेरे मेंटीज को सिखाता हूं, और ऑल ओवर इंडिया से 450 प्लस मेंटीज अभी तक मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं। उनमें से 65 to 70% लोग सफल हुए हैं, बाकी 35+ % लोग सफल नहीं हो पाए, अभी भी वो स्ट्रगलिंग मोड में हैं। क्यों है उसकी वजह आप भी ढूंढ सकते हो, क्यों नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मेरे से कोर्स करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अल्टीमेटली मैं कोर्स के दौरान जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सिखाता हूँ, उन चीजों को रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल ट्रेडर बन पाएंगे। वेल, देखिए, ये मानिए कोई रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन बेसिकली पीडीएच या तो R3 या तो और किसी भी स्थिति के बने हुए कोई भी रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट को कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं समझना चाहिए, उसको एक जोन मानना चाहिए, राइट? ठीक है, सिंगल लाइन मानेंगे तो हमसे कई बार गलतियां हो जाती है। ओके, तो मानिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अभी क्लियरली लाइन दिख रही होगी, सब कुछ दिख रहा होगा। अब देखिए, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी प्राइस मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ अपसाइड जाते जाते उस रेजिस्टेंस के पास जैसे जाने लगा, हमारे मन में होता क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी इसको बाय कर लो, ऐसा ही होता है ना। पर हमें इंतजार करना है, वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइसिवली प्राइस एक्शन जो है तोड़ पाता है या नहीं। हमने देखा प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, टच करके जो करेक्टिव मूव दे के नीचे आया, फिर नीचे ही आने लगा। मतलब इसने ब्रेकआउट या ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ नहीं पाया। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो देख के पहले से फोमो के चलते, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चलते अगर आप जल्दबाजी में यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री ले लेते हो, तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री गलत एंट्री होगी, आप फंस जाओगे। तो ये फर्स्ट सिनेरियो जो है, बाई साइड के लिए बोल रहा हूं, फर्स्ट सिनेरियो जो है बाई एंट्री के लिए बिल्कुल गलत सिनेरियो है। आपको धीरज धरना है, रेजिस्टेंस लेवल को पार करके प्राइस एक्शन ऊपर जाए, तब जाके हम डिसीजन लेंगे। ओके, पहला सिनेरियो ऐसा जब बनता है, ये गलत सिनेरियो है बाइंग के लिए। सेकंड सिनेरियो, हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, बाई साइड के लिए बात कर रहे हैं अभी। सेकंड सिनेरियो, प्राइस वैसे ही नीचे से अपसाइड जाते जाते ऊपर प्राइस आया, रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस भी किया, थोड़ा ऊपर और भी गया। ये जो इंपल्सिव मूव लेके प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस में ऑब्वियसली करेक्टिव मूव भी आएगी। करेक्टिव मूव आई और प्राइस नीचे की तरफ उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। प्राइस यहां पे रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ अगर चला जाता तो उसको हम सही सिनेरियो मानते, पर ऐसा नहीं हुआ। ब्रेकआउट तो दिया, पर ब्रेकआउट के बाद फिर करेक्टिव मूव लेके नीचे ही आ गया। तो इस तरह के ब्रेकआउट को आप फॉल्स ब्रेकआउट या तो फेक
ब्रेकआउट कहोगे। इस तरह के ब्रेकआउट को आप क्या ब्रेकआउट कहेंगे? फेक ब्रेकआउट या तो फॉल्स ब्रेकआउट, FBO कहेंगे, FBO। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, एक स्विंग हाई बनाया, फिर करेक्टिव मूव लेके वो नीचे आया। कहां तक आया? रेजिस्टेंस लेवल तक आया। रेजिस्टेंस लेवल तक आके रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया, उस लेवल को रिटेस्ट किया, दोबारा से टच किया, उसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर इंपल्सिव मूव, सेकेंड इंपल्सिव मूव लेके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है, उस समय ये पहले वाला जो लेवल था ना, पहले वाला ये जो स्विंग हाई का लेवल था, इस लेवल तक प्राइस के आने की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले ही मिड वे में ही, आधे रास्ते में ही आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है? स्टॉप लॉस ये जो स्विंग लो देख रहे हैं, स्विंग लो से बफर माइनस करके आप उसके थोड़े नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, बाइंग यहां पे बनाइए। स्विंग हाई तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मार्केट के सिनेरियो ठीक है, मार्केट में मूवमेंट, निफ्टी की मूवमेंट ओके है, तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी मूवमेंट अगर खराब है, बहुत खराब है, तो हो सकता है, बाय चांस की बात है, कि आपको बहुत छोटा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, या तो आपको स्मॉल लॉस लेके निकलना पड़ सकता है। रेंज बाउंड मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ये सिनेरियो द बेस्ट सिनेरियो है एंड दिस इज द राइट सिनेरियो। बाकी ये फेक ब्रेकआउट था और ये सिनेरियो बना ही नहीं। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ द सिनेरियोज आर नॉट प्रॉपर सिनेरियोज। ये सिनेरियो बिल्कुल ही सही नहीं है, इसमें हम बाइंग नहीं करेंगे। इस तरह के सिनेरियो देख के हम एंट्री लेने से रह जाएंगे, वो हमारे लिए बेहतर होगा। एंट्री लेके फंसने से बेहतर है कि एंट्री हम ना ले, एंट्री हमें ना मिले, पोजीशन ना मिले, वो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट सेल सिनेरियो के लिए आप देखिए, ये नीचे वाली छवि देखिए। ठीक है, छवि ही मेन काम है। यहाँ पे प्राइस पॉइंट वगैरह सब कुछ ओके है, बट डिजिटली नंबर गिन के, डिजिट गिन के ऑनलाइन लाइव मार्केट में डिसीजन लेते लेते मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए छवि दिमाग में रखिए, बस ये छवि। प्राइस ऐसे नीचे की तरफ भागते हुए आए, डाउन साइड मूवमेंट, ओके, डाउन ट्रेंड आप जिसको मानने लगे हैं। नेक्स्ट आपने देखा सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन है, कोई भी सपोर्ट लाइन PDL हो सकती है, ये लाइन S3 हो सकती है, और किसी भी तरह के ये सपोर्ट लाइन हो सकती है। सिंगल लाइन ना मान के इसको जोन मान के चलना, राइट। तो इस जोन तक, सपोर्ट जोन तक ये मूवमेंट आई, डाउन साइड मूवमेंट, फिर जाके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके करेक्टिव मूव देके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन जाने लगा। तो प्राइस एक्शन जब ऊपर की तरफ जाने लगा, आप क्या करेंगे? आप इंतजार करेंगे कि प्राइस दोबारा से नीचे आए क्या नहीं। अगर नहीं आया तो आप ऑब्वियसली इसमें सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे तो आप फंस जाएंगे ना। यहाँ पे अपने माने आप सेल करके बैठ गए, यहाँ तक आते आते आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा, और बाद में यहाँ जब जाने लगा आपका धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता गया। यहाँ तक जब आएगा तब तक आपका नो लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप आ गए, और उसके बाद जब यहाँ तक चला जाएगा प्राइस तो आप लॉस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फंसने वाली बात है ना, ये सिनेरियो फंसाने के लिए है। तो ये सिनेरियो सही सिनेरियो नहीं है सेल साइड के लिए। प्राइस सेकंड सिनेरियो देखिए, प्राइस नीचे के तरफ भागता हुआ आ रहा है, आपके मन में लालच हो रहा है कि अभी इसको सेल कर दे, अभी सेल कर दे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सेल आप मत करें, आप पहले ब्रेकआउट को प्रॉपर होने दीजिए। आपने देखा ब्रेकआउट भी हो दिया, ब्रेकआउट भी हो लिया, तो आप क्या बोलोगे? सर अब तो सेल कर सकते हैं, ब्रेकआउट होने दीजिए,
एक स्विंग लो बनने दीजिए, उसके बाद करेक्टिव मूव लेके और एक स्विंग हाई बनने दीजिए, फिर प्राइस को नीचे आने दीजिए। देखिए क्या है, कहां तक करेक्शन देके ले गया। ये करेक्शन अगर सपोर्ट लाइन तक जाके फिर नीचे आ जाता तो हम इसको मानते सही सिनेरियो, पर ये यहां तक गया तो मतलब ट्रेंड अगर यहां से भी नीचे आए तो ट्रेंड है, पर ट्रेंड में दम कम है। ट्रेंड में क्या है, अगर यहां से नीचे आए तो ट्रेंड में ताकत तो है पर ताकत कम है, ठीक है, वीक ट्रेंड जिसे कहते हैं। तो वीक ट्रेंड में भी ना फंसना ही बेहतर काम होगा। तो चलिए, ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट भी फॉल्स या फ्रेक ब्रेकआउट, तो FBO इसको भी बोलेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो एंड सेकंड सिनेरियो, दोनों सिनेरियो हमारे लिए, ये सेल साइड के लिए डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो सेल के लिए बिल्कुल ही काम की चीज नहीं है। तो इस तरह के पैटर्न जब बनते हुए हमें नजर आए तो उसमें हम सेल एंट्री नहीं बनाएंगे। सेल एंट्री कब बनाएंगे, जब प्राइस ऐसे नीचे आया, क्रॉस करके सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके नीचे आया, स्विंग लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ करेक्टिव मूव लेते हुए ऊपर की तरफ प्राइस गया और ये सपोर्ट लेवल को टच किया, मतलब रिटेस्ट किया। हो सकता है सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा क्रॉस करके और भी ऊपर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आने लगे, नीचे जब आने लगे पीछे के मतलब पहले के ये जो स्विंग लो बना था उस लेवल तक आने की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले ही आप इसको सेल कर दीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए। ये जो स्विंग हाई बना था ना, इस स्विंग हाई के साथ बफर ऐड करके, बफर प्लस करके जो लेवल बनता है थोड़े से ऊपर पे, उस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और जब तक ये रेड रैली बनी रहेगी और लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ प्राइस मूवमेंट नीचे जाती रहेगी, आप तब तक सेल साइड में बैठे रहो। बाय साइड के लिए क्या था, जब तक हायर हाइज, ये स्विंग हाई जितने बनेंगे हायर हाइज बनने चाहिए और स्विंग लोज जितने बनेंगे वो हायर लोज बनने चाहिए। हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ जब प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा तब तक हम बैठे रहेंगे, और सेल साइड के लिए लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता हुआ प्राइस एक्शन जब तक नीचे जाता रहेगा तब तक हम सेल साइड में बैठे रहेंगे। ये है बाय साइड एंड सेल साइड के लिए मार्केट में 3 सिनेरियोज, जिनमें से पहले 2 सिनेरियोज जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। इन सिनेरियो में फंसना कभी नहीं, फंसेंगे तो कम से कम छोटा लॉस लेके ही आपको निकलना पड़ेगा। बाय चांस की बात है कि अगर आप सही ढंग से ट्रेड करना चाहो तो आप छोटा प्रॉफिट भी लेके निकल नहीं पाओगे। एक तो पर्टिकुलर ट्रेड को टाइम देना होता है ना, और टाइम देते देते जब कभी भी मन चाहे तो आप एग्जिट तो नहीं कर सकते ना, कुछ तो कंडीशंस होती है। उन कंडीशंस को जब तक देखते रहेंगे इतने में आपका छोटा लॉस जो है बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस भले ही हिट ना हो। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट कर पाए, इसके चलते आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं। अभी 9 साढ़े 9 मिनट के बाद न्यू आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उस न्यू आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए टॉप सीक्रेट नंबर 2 डिस्कस करता हूं। अभी मैं एक बार देख लेता हूं, कुछ लोगों की चैट पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, देख लेता हूं क्या लिखा। नो साउंड, कुछ लोगों ने कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। काफी हाई स्पीड फुल वॉल्यूम है मेरे सिस्टम का, और सर मैं बोल भी तेज रहा हूं। एक्चुअली कहीं ना कहीं इशू है, नेटवर्क इशू है। ठीक है सर, और हाउ टू अवॉइड दैट रॉन्ग एंट्री, आपको छवि याद रखनी है प्रमोद जी। जैसे आप छवि याद रखेंगे तो छवि से आपको पता चल जाएगा। वो छवि जब तक आपको वो थर्ड टाइप की छवि नहीं दिखेगी तब तक एंट्री लीजिए मत ना। हाँ नरेश जी, थैंक यू। S3 R3 कौन सा लेना है जी? S3 R3 तो पिवोट पॉइंट से जो S3 R3 आपको मिलते हैं वही लेंगे। ठीक है, सपोर्ट लेवल 3 एंड रेजिस्टेंस लेवल 3। ठीक है, हाँ प्रमोद जी, वो जो सेकंड सिनेरियो है, चलिए मैं आपको दोबारा से ये दिखाता हूँ पिवोट का। हाँ कैमरा ले लीजिए। ठीक है, टाइम फ्रेम अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, आप प्राइस सेक्शन की बेसिस पे आप ट्रेड करते हो तो
1 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है, अगर स्ट्रेटजी बेस्ड करते हो तो आपके लिए 5 मिनट्स का बेस्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं, कैमरेला यूज करिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, ओके। मैं एक बार ये प्रमोद जी कुछ उनका एक सवाल है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेकंड जो सिनेरियो है, इस सेकंड सिनेरियो में आपने देखा ब्रेकआउट हो गया, पर ब्रेकआउट की आपकी एंट्री थोड़े ना बनेगी। ब्रेकआउट पे तो आपकी एंट्री की पोजीशन आई नहीं ना। आप तो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आप करेक्टिव मूव को देखेंगे। करेक्टिव मूव जब देखेंगे, करेक्टिव मूव यहाँ तक आके फिर ऊपर के तरफ करेक्टिव मूव यहाँ पे चली जाती तो आप एंट्री बनाते। पर करेक्टिव मूव जब ऐसे नीचे के तरफ चले जाएगी, आप इंतजार करेंगे तो आपको सिनेरियो पता चल जाएगा ये वो सिनेरियो नहीं है जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो इस पे एंट्री नहीं बनाएंगे ना। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर करेक्टिव मूव देके इसकी तरह ये नीचे आने लगा, पर इसकी तरह नीचे आके ये ऐसे रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं गया ये प्राइस मूवमेंट, ये बल्कि इसका सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस का ही, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल काम था, मुश्किल काम को उसने पार कर गया और अब उसी रेजिस्टेंस को अब एज सपोर्ट यूज कर रहा है प्राइस एक्शन, राइट। अब इसको जब सपोर्ट लेवल के हिसाब से यूज करके वो ऊपर जाएगा तभी तो हम बाई करेंगे, उससे पहले क्यों करें। देखिए, आज के दिन में जो भी इस वेबिनार में जो भी टॉपिक्स हमने रखे उसके बारे में ही बातचीत हो पाएगी, उसमें भी समय कम ही पड़ जाएगा, है ना। हाँ, मेरे जो मेंटीज है उनके लिए मैं किसी को स्टॉक नहीं देता हूँ। मैं देखते हैं आप लोग अगर कोई मेरे फेसबुक पेज को लाइक करते हैं या देखते हैं तो आपको पता है कि सुबह मतलब ट्रेड मार्केट ओपन होने से 1 घंटे 1.5 घंटे या तो कई बार 3-4 घंटे पहले भी मैं स्टॉक्स और मार्केट व्यू भी दे देता हूँ। पर मेरे ऑल ओवर इंडिया से मेरे मेंटीज जो हैं उनको मेरे ये लाइव प्रोग्राम स्टॉक्स ऑफ द डे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। उनको मैं बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बना के तभी छोड़ता हूँ, वो अपने आप स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम ट्रेडर के लिए इट्स अ नाइटमेयर स्टॉक सिलेक्शन करना। कल के दिन पे किस स्टॉक्स पे मैं नजर रखूंगा तभी मेरे को मूवमेंट मिलेगी, ये लगभग सभी ट्रेडर्स के लिए एक बुरा सपना जैसा है, नाइटमेयर। रात को नींद नहीं आती कल किन स्टॉक्स पे नजर रखें। ठीक है, तो वो अलग विषय है। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं, टॉप सीक्रेट नंबर 2 पे जाते हैं। ओके, जो वेटरन ट्रेडर्स हैं यहाँ पे लंबे समय मार्केट में जो लोग जुड़े हुए हैं तो उन सभी को ये बात बिल्कुल पता होगी। जो मैं सावधान कर रहा हूं आप लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है, पर ये मेरे जिंदगी में एक उपलब्धि है। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में और नाना करके 1000 के करीब लोगों को मैंने ट्रेडिंग करवाया है। उस हिसाब से, उसकी तजुर्बे के हिसाब से मैंने देखा है कि जिस दिन ही किसी ने एग्रेसिव एंट्री ली, बाई साइड हो या सेल साइड हो, तो उसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है मैक्सिमम दिनों में। इसीलिए मैंने एक थंब रूल बना लिया सभी के लिए, डोंट ट्रेड अंटिल निफ्टी 50 इज प्लस और माइनस 0.25% टू 0.30%। कम से कम निफ्टी ये जो 1.25% से लेकर के 0.30% तक पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में जब तक ना जाए, आप रिस्पेक्टिवली बाय साइड या सेल साइड कुछ भी साइड, कोई भी साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ निफ्टी को वॉच करते रहेंगे। स्टॉक को देख रहे हैं, स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, साइड बाय साइड निफ्टी का चार्ट भी देखिए, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, कई लाख ट्रेडर्स हैं जो भाई लोग निफ्टी की मूवमेंट को कभी देखते ही नहीं है, सीधा स्टॉक का चार्ट वॉच करते हैं। कुछ लोग तो स्टॉक का चार्ट भी वॉच नहीं करते, सीधा मार देते हैं, मतलब ऑर्डर मारते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये विनम्र निवेदन है, कल के दिन से आप ट्रेड करते वक्त एक बार मेरी बात मान के, एक बार साइड बाय साइड निफ्टी का चार्ट, जिस टाइम फ्रेम में आप स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, सेम टाइम फ्रेम में आप निफ्टी का चार्ट साइड बाय साइड खोल के देखते रहो। निफ्टी के मूवमेंट के अनुसार आप स्टॉक में अगर वैसे ही मूवमेंट दिखे तो उसके अकॉर्डिंग सही सिनेरियो बने तभी आप एंट्री लो, नहीं तो मत लो। ऐसे ट्रेड करेंगे
तो मैक्सिमम दिन गलत ट्रेड में फंसने से अब बच जाओगे, आपका लॉस होने से अब बच जाओगे। तो छोटा मोटा ही प्रॉफिट जिस दिन आपको ट्रेड मिल रहा है उस दिन छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भी आप निकल पाओ, फिर भी ओवरऑल महीने के एंड में देखोगे आप पॉजिटिव में बैठे हो, प्रॉफिट में बैठे हो, कुल मिला के लॉस में नहीं बैठे हो। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? अदरवाइज यू मे गेट ट्रैप्ड, नहीं तो आप फंस सकते हो। फंसिए मत। हार्ड अर्न्ड मनी, किसी दूसरे प्रोफेशन से आप पैसे कमाते हो, शेयर मार्केट में पैसे गंवाने के लिए आप पोजीशन लेते हो क्या? नहीं ना। तो आप प्लीज अपनी हार्ड अर्न्ड मनी की कदर कीजिए। जैसे मैं बताता हूं, जैसे आप मेरे परिचय में मैंने बताया आपको, मैं एक टीचर टर्न्ड मेंटर हूं। सीबीएसई स्कूलों में मैं पीजीटी टीचर रहा। पिछले 13 साल मैं पीजीटी टीचर रहा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्लास 12 तक बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाने के लिए। और मेरा ये करियर जो है साइड बाय साइड ये करियर चलता रहा पिछले 4.5 साल से। 2015 के मिड से ही मान लीजिए मैंने स्कूल का जॉब जो है मैंने छोड़ दिया। स्कूल की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं अपनी मेंटीज को प्रॉपर टाइम ऑनलाइन मार्केट में उनको सपोर्ट नहीं दे पा रहा था। और मेरा मानना है जो भी काम करूंगा ईमानदारी के साथ ढंग से करूंगा। जो काम मेरे को ढंग से करना नहीं आता तो नहीं करूंगा। जिंदगी में जो भी काम, जिस फील्ड में भी मैंने जब कभी भी काम किया, तो मेरा ऐसा ही रवैया है, करना है तो करूंगा ढंग से, नहीं करना तो नहीं करूंगा। तो वो छोड़ दिया। अभी मैं बस अपना कोचिंग सेंटर ये चलाता हूं। इसके चलते आप सबके आशीर्वाद से चल रहा है, भगवान की दया से, आप सबकी कृपा आशीर्वाद से चल रहा है, सही ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। Consequently, your stop loss SL equals to stop loss will hit, or you will have to exit in minimum to medium loss, if not big. अगर बड़ा प्रॉफिट, बड़ा लॉस ना भी हो, छोटा मोटा लॉस लेके आपको, या तो छोटा से मीडियम लॉस लेके आपको निकलना पड़ेगा। न्यू आईडी पासवर्ड दे रहा हूं, फटाफट रिज्वाइन हो जाइए न्यू आईडी पासवर्ड के थ्रू। पुराने वाले आईडी पासवर्ड कोई काम नहीं आएंगे, राइट?